A very fresh and beautiful morning to all my lovely students. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English grammar class. I hope students that you have already gone through yesterday's video, right? जिसमें मैंने articles का chapter start किया था, right? It's chapter number 11 from your English grammar book, that is Collins. It's on page number 48. So I request you all students to open your English grammar book, page 48. In the yesterday's class, students, I taught you what are articles and we studied about A and N. Right? हमने कल सीखा था कि हमारे पास 3 आर्टिकल्स होते हैं. एक होता है A, दूसरा होता है N and third is the. उसमें से हमने A और N के बारे में सीखा था. We learned about A and N. We use A for the words or the nouns which begins with the consonant sound. Right? ये याद रखना है आपको कि हम A किसके साथ यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जो पहला साउंड है, right, वो कॉन्सोनेंट का होता है, तब हम A यूज़ करते हैं. And when do we use N? We use N when the first sound of the word is that of vowel. Right? कौन सा sound होता है पहला? Sorry. The first sound is of vowel. Okay? So we are going to use A for the consonant sound and N for the vowel sound. और हमने ये भी सीखा कि जब हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव्स होते हैं, राइट, व्हेन वी हैव एडजेक्टिव्स, और उसके पहले अगर हमें आर्टिकल लगाना है तो हम नाउन का साउंड नहीं देखेंगे पहला, लेकिन हम एडजेक्टिव जो है उसका पहला साउंड देखेंगे और उसके बेसिस पर हमें ए और एन लगाना है. राइट? सो आई थिंक वी हैव रिवाइज्ड इट and now we can move ahead with the exercise, that is exercise B. right? exercise A मैंने आपको करवाई थी और B जो है वो होमवर्क दिया था आपको. तो अगर आपने आंसर्स लिख लिए हैं then please check your answers as I am going to discuss it right now. Okay, so let's see. Okay, so here we need to fill in the blanks with A or N. The first one, can you see dash old lady crossing the road? Can you see dash old lady crossing the road? Now here students, the noun is lady और उसके आगे लगा हुआ है adjective, that is old. अभी old जो है उसमें पहला sound क्या है? What is the first sound over here? The first sound we can hear is that of O, जो एक vowel है ना? O is a vowel. And so what are we going to write over here? Blank में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे N. Can you see an old lady crossing the road? I hope कि आपका भी ये वाला sentence right हुआ होगा, right? और नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप उसको rectify कर लो, ठीक है? Let's see second one. Usha is dash fast runner. Usha is dash fast runner. Now in this sentence students, you can notice कि यहाँ पे हमारा noun है runner, but before runner they have placed the word fast, which is an adjective, right? So what we are going to see when we are placing an article, we have to see the first, we have to find out the first sound of the adjective, right? So the first sound of the adjective over here, fast, is F, that is of F. So we are going to place A. Okay? Let's see third one. I will place dash order for the book. I will place dash order for the book. Over here students, order is the noun, right? And the first sound that we hear is that of O, and that's why we are going to write N. I will place an order for the book. Ruby is dash brave child.
रूबी इज़ डैश ब्रेव चाइल्ड। सो यहाँ पे हमारा नाउन तो चाइल्ड है, लेकिन उसके आगे एडजेक्टिव लगा हुआ है ब्रेव, तो हमें उसका साउंड देखना है। एंड द फर्स्ट साउंड वी कैन हियर इज़ ब, brave, b, that is consonant. So we are going to write A. Ruby is a brave child. Fifth one. Do you know how to make dash eggless cake? Do you know how to make dash eggless cake? Now here cake is the noun and eggless is the adjective. And when we say eggless, the first sound we hear is that of E, that is E, right? And so we are going to write N over here. Do you know how to make an eggless cake? Next one. There is dash glass door over here. There is dash glass door over here. Here door is the noun और ग्लास उसके बारे में ज़्यादा बता रहा है कि कैसा डोर है ना, मतलब वो एडजेक्टिव है। तो ग्लास का पहला साउंड क्या आता है? ग, दैट इज़ ऑफ जी, एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग टू राइट ए। देयर इज़ ए ग्लास डोर ओवर हियर। नेक्स्ट वन. डिड यू ब्रिंग डैश कोट? डिड यू ब्रिंग डैश कोट? नाउ व्हेन वी से द वर्ड कोट, the first sound is k, and that is of C. So we are going to write A. Sorry. Did you bring a coat? Okay. Next one. That is dash interesting story. That is dash interesting story. The noun is story and interesting is adjective. Now when we say interesting, the first sound we hear is that of A, interesting, that is of I, and so we are going to write N, that is an interesting story. Ninth one. I am going to make dash apple pie. I am going to make dash apple pie. Your pie is the noun and कौन सा वाला पाई? एप्पल पाई, है ना। तो यहाँ पे एप्पल नाउन नहीं है, यहाँ पे एप्पल एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है, ठीक है, क्योंकि हम पाई बना रहे हैं, लेकिन कौन से वाले? एप्पल पाई बना रहे हैं, इसीलिए एप्पल यहाँ पे जो है वो है हमारा एडजेक्टिव, है ना। तो पहला साउंड किसका आता है? वोवेल का, एन। So we are going to write an apple pie. I am going to make an apple pie. Next one. Can you give me dash piece of chicken? Can you give me dash piece of chicken? Here chicken is the noun and piece of chicken. What do you want? Piece of chicken. So piece जब हम बोलते हैं, right, when we say piece of chicken, so the first word or the first sound we can say is that of P, right? So we are going to write A. Can you give me a piece of chicken? Okay students, so I hope कि आपको exercise A और exercise B दोनों अच्छे से समझ में आ गई है, and you have also understood the rules related to A and N. Now let's move on to the next article, that is the. Okay, so let's see the next article, that is the. When do we use the? We use the when we talk of a particular person or thing. मतलब जब हम स्पेसिफिक है कि हम कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर स्पेसिफिक कि हम इसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बात कर रहे हैं, इसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए बात कर रहे हैं, तब हम यूज़ करते हैं द, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बॉय इज़ रनिंग एंड द बॉय इन ब्लू शर्ट इज़ रनिंग। देखो अभी यहाँ पे ए बॉय इज़ रनिंग जो पहली लाइन है स्टूडेंट्स, अ बॉय इज़ रनिंग,
In the first sentence, they have used a because we are not definite about that boy. ठीक है, we don't know कि अभी हम जैसे भी किसी को पॉइंट आउट करते हैं, है ना, तो पहली बार में तो कैसे पता चलेगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं. हमें कुछ चीज़ स्पेसिफिकली बतानी पड़ेगी, राइट, तो ही हमें पता चलेगा कि हाँ भाई हम उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे कि दूसरा सेंटेंस है, द बॉय इन द ब्लू शर्ट इज़ रनिंग. नाउ हियर वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द बॉय. हम कौन से बॉय की बात कर रहे हैं? जो ब्लू शर्ट में है वो. ठीक है, विच बॉय वी आर टॉकिंग अबाउट? यू टॉकिंग अबाउट द बॉय हु इज़ इन द ब्लू शर्ट. दैट मीन्स we are very specific about the boy and that's why we have placed the over here, है ना. लेकिन पहले वाले में a लिया था. ओके, if you see the second example, an owl is sitting on the tree branch. An owl is sitting on the tree branch. Now here students, if you see, पहले में हमने सिर्फ an लगाया हुआ है owl के साथ. Owl जो है, owl, when you say owl, the first sound is that of ah, right, that is a vowel sound, and so we have placed an over here. An owl is sitting on the tree branch. The owl on the tree branch is sleeping. The owl on the tree branch is sleeping. So here we have used the बिकॉज हम पर्टिकुलरली उस आउल की बात कर रहे हैं जो सो गया है. अस्लीप मीन्स सो जाना, राइट. तो वो आउल की बात हो रही है जो ट्री ब्रांच पर सो गया है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज़ द. ओके, ए और एन हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी पर्सन और थिंग के बारे में पहली बार बात करते हैं. व्हेन first time. When are we going to use a and n? When we are talking about a person or thing for the first time. At that time we are going to use a or n. लेकिन जब हम दूसरी बार उसी पर्सन और उसी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, then we are using the, क्योंकि हमने पहले ही उसको मेंशन कर दिया है and now we are just talking about it, right? हमने पहले ही उसके बारे में मेंशन कर लिया है कि हम इस मतलब स्टार्टिंग में, राइट, द फर्स्ट सेंटेंस, उसके अंदर हम डेफिनेट नहीं होते हैं और स्पेसिफिक नहीं होते हैं, इसीलिए हम ए यूज़ करते हैं या फिर एन यूज़ करते हैं. लेकिन जब हम दूसरी बार बात कर रहे होते हैं उस चीज़ के बारे में, देन वी आर पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक अबाउट दैट थिंग, एंड सो वी आर गोइंग टू यूज़ द ओवर देयर. Okay, I will give you a card. Please give the card to Rohini. Now यहाँ पे एक सेंटेंस है, I will give you a card. मेरे पास एक कार्ड है, ठीक है, मैं तुमको दूंगी. वही कार्ड तुम रोहिणी को देना. Please give the card to Rohini. That means पहले मैंने थिंग के बारे में बात की. I am talking about one thing, that is card, right? And so I used a over there, है ना, एक कार्ड है. फिर मैंने स्पेसिफाई किया कि वो कार्ड, प्लीज़ गिव द कार्ड टू रोहिणी. दैट मीन्स जिस कार्ड के बारे में मैंने पहले सेंटेंस में बात की, वो कार्ड दूसरे सेंटेंस में रोहिणी को देने के लिए कहा गया है, राइट. एंड सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यूज़ ए और एन अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो मैंने आपको सिखाए हैं. और जब आप उसी बारे में दूसरी बार बात करते हो तो आप द यूज़ कर सकते हो, right? So make sure to use the when you are talking about that person or thing in particular and for the second time. Okay, when we use or when we talk about them again. Now there are some rules and situations where you have to use the. ठीक है, कुछ rules and regulations है जहाँ पर आपको the use करना होगा. Okay, so let's see that. When are we going to use the? We use the before the names of rivers, oceans, deserts, mountain ranges, famous buildings, newspapers, trains and ships.
ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ याद रख सकते हो बच्चों कि हम प्रॉपर नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं, सिर्फ पर्सन के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। नॉट विथ पर्सन, पर्सन का जो स्पेशल नेम होता है उसके साथ नहीं, लेकिन बाकी के जो प्रॉपर नाउन्स है ना, विच कैन बी कंसिडर्ड एज थिंग्स, है ना, जो चीज़ें हम थिंग्स में काउंट करते हैं, उन सारी चीज़ों को, उन सारी चीज़ों के प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग ध यूज़ करते हैं। ओके, रिमेंबर दैट कि हम ध कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक रिवर, ओशियन, डेजर्ट, माउंटेन्स, फेमस बिल्डिंग, न्यूज़पेपर, ट्रेन्स एंड शिप्स। ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स, दैट इज़ द प्रॉपर नेम, है ना, प्रॉपर नाउन जो होता है उनके लिए। जैसे मैंने आपको कॉमन प्रॉपर पढ़ाया था, तब मैंने आपको समझाया था कि रिवर बहुत सारी है तो हम उसे कॉमन में डालेंगे, लेकिन अगर मैं उसी रिवर का नाम देती हूँ गंगा रिवर, देन गंगा इज़ प्रॉपर नाउन, तो वो जो प्रॉपर नाउन है उसके आगे हमें ध लगाना है। लेकिन जो पर्सन के नाम होते हैं ना, जैसे बॉयज़ है, गर्ल्स है, विमेन है, मैन है, तो उसके अगर नाम देते हैं, जैसे मान लो कि फातिमा, राइट, या फिर रिया, राज, तो उनके आगे ध नहीं लगेगा, ध फातिमा, ध रिया, ध राज ऐसा नहीं लगाता है। तो हम पर्सन का जो प्रॉपर नाउन होता है उसके आगे ध नहीं लगाते हैं, बट वी डू यूज़ ध आफ्टर द नेम्स ऑफ रिवर, ओशियन, डेजर्ट, माउंटेन रेंजेस, famous building, newspaper, trains and ships. If you see the example, the Ganges, Ganges is the name of river, उसके आगे ध लगा है। Indian Ocean, it's the name of an ocean, उसके आगे भी ध लगाया है। Sahara Desert, Sahara Desert, it's the name of desert, इसके आगे भी ध है। Then we have Himalayas, Himalayas is the name of mountain ranges, and there also they have placed ध। Eiffel Tower, it's a famous building, right, उसके आगे भी द। Times of India, that is the name of newspaper, उसके आगे भी ध। The राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस इज द नेम ऑफ ट्रेन, उसके आगे भी ध लगाया है। एंड द टाइटैनिक, टाइटैनिक इज द नेम ऑफ शिप, राइट, तो उसके आगे भी ध लगाया है, ठीक है। नाउ वी ऑल्सो यूज ध with the objects that are only one of their kind, मतलब जो पूरे यूनिवर्स में या पूरे वर्ल्ड में एक ही है ना, उसके लिए भी हम ध यूज़ करते हैं। वी यूज़ ध बिफोर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, जैसे कि सन है, मून है, स्काई है, अर्थ है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो एक एक ही है ना। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी में सन एक ही है, हमारे अर्थ का जो मून है वो भी एक ही है, और स्काई तो एक ही है ना। तो इन सब नाउन्स के साथ आप क्या आर्टिकल लगाओगे, यू आर गोइंग टू प्लेस ध अलॉन्ग विथ इट, ओके। एंड वी ऑल्सो यूज ध बिफोर एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव डिग्री एंड वर्ड्स लाइक लास्ट, फर्स्ट एंड ओनली, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ पता है कि नहीं पता है मुझे नहीं मालूम कि आपने एडजेक्टिव्स के जो 3 फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, वो आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, बट येस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस क्लास, ठीक है। मतलब ये आपका जो 4th स्टैंडर्ड है उसमें आपको आएगा एक चैप्टर एडजेक्टिव के रिलेटेड, जिसमें हम पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री, मतलब जहाँ पर एक की कंपैरिजन बाकी सबके साथ होती है वो डिग्री होती है, ठीक है। एडजेक्टिव्स तो मालूम ही है आपको, है ना, एडजेक्टिव्स मतलब जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो, है ना। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है एडजेक्टिव का, जिसके अंदर एक चीज़ को बाकी सारों के साथ कंपेयर किया जाता है। तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तब हमें ध लगाना पड़ता है, ठीक है, बिफोर दैट एडजेक्टिव। शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। नव योर स्टूडेंट जो है वो हमारा नाउन है, बेस्ट इज़ द एडजेक्टिव, और ये बेस्ट स्टूडेंट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, ओके, इट इज़ सुपरलेटिव डिग्री, इसीलिए उसके आगे हम लगाएंगे द बेस्ट स्टूडेंट,
इन द क्लास। दैट मीन्स वो एक स्टूडेंट की कंपैरिजन बाकी सारे बच्चों के साथ की गई है, राइट। सो शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। दिस इज़ द ओनली मेडिसिन शॉप इन द एरिया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट, फर्स्ट एंड ओनली ऐसे वर्ड्स अगर आते हैं, है ना, सेंटेंस में, एक नाउन के पहले, नाउन से पहले अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं लास्ट, फर्स्ट एंड ओनली, देन यू हैव टू प्लेस द बिफोर देम ऑल्सो। दिस इज़ द ओनली मेडिकल शॉप इन द एरिया। दैट मीन्स ये पूरे एरिया में सिर्फ यही वाली एक मेडिसिन शॉप है, तो वहाँ पर हम ध लगाएंगे। ओके, नाउ वी विल लर्न सम रूल्स जहाँ पर ध नहीं यूज़ किया जाता है, राइट। वी नीड टू सी कि हम ध कहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं। वेयर डू वी नॉट यूज़ ध? वी डोंट यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ पीपल, सिटीज़ एंड कंट्रीज़। हम लोग लोगों के नाम के आगे ध नहीं लगाते हैं, सिटीज़ के नाम के आगे भी ध नहीं लगाते हैं, और कंट्रीज़ के नाम के आगे भी ध नहीं लगाया जाता है, ठीक है। ध इंडिया नहीं बोलते हैं, ध इंग्लैंड नहीं बोलते हैं, है ना। ध दुबई नहीं कहा जाता है, ध भरूच, ध गुजरात ऐसा नहीं बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे ही नाम के आगे भी ध नहीं लगता है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, सो वी डोंट राइट ध ओवर देयर, okay. So before the name of people, city and country, we do not use the, okay. In the same way, before the name of ideas and qualities, that means जब हम abstract noun के बारे में बात कर रहे हैं, ideas और qualities का मतलब क्या होता है, abstract noun, वो हमने already पढ़ लिया है, right. आई होप कि आपको याद है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स किसको कहते हैं, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स मतलब वो वाले नाउन्स जिसको हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते हैं, राइट। हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में हमने पढ़ा था क्या क्या चीज़ें आती है, आइडियाज़, क्वालिटीज़, फीलिंग्स, इमोशंस, है ना, थॉट्स, ये सारी चीज़ें जो हम सिर्फ विजुअलाइज और इमेजिन करते हैं, वो टेबल और चेयर की तरह कहीं पर पड़ी नहीं है कि हम उसको टच करेंगे और देखेंगे, ठीक है। दोज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में जो क्वालिटीज़ है, आइडियाज़ है, पेशेंस इज़ ए वर्च्यू, या पेशेंस इज़ अ क्वालिटी, है ना। पेशेंस मतलब कोई भी सिचुएशन हो, आप बुरी सिचुएशन है, अच्छी सिचुएशन है, आप पैनिक नहीं करते हो, दैट इज़ कॉल्ड पेशेंस, सो दैट इज़ ए क्वालिटी, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. So before that also we are not going to use the, okay. And we do not use the before the uncountable nouns. Uncountable nouns मतलब वो सिंगुलर और प्लूरल हो ही नहीं सकते हैं, है ना। हम ई और एन तो लगा ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है, और ई और एन तो हम लोग कब लगाते हैं, जब हम सिंगुलर नाउन्स की बात करते हैं तब। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो हम सिंगुलर और प्लूरल का डिवीजन नहीं करते हैं, वी कैन नॉट डिवाइड देम इनटू सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट. सो अनकाउंटेबल नाउन्स जो है उनके साथ भी हमें आर्टिकल नहीं लगाना है. वी आर नॉट गोइंग टू ऐड द आर्टिकल द. ह्यूमन्स कैन नॉट लिव विदाउट द एयर. नाउ एयर जो है यहाँ पे वो काउंटेबल तो है नहीं, राइट. एयर इज़ नॉट काउंटेबल and so we cannot write the air. We cannot write the air. We just have to write air. Humans cannot live without air. Okay? Plural है तो उसके साथ तो लगेगा ही नहीं. लेकिन अनकाउंटेबल जो नाउन्स है जो सिंगुलर और प्लूरल के अंदर बाइफरकेट नहीं होते हैं उसके लिए भी हमें द नहीं लगाना है, राइट. सो लेट्स जस्ट रिवाइज वेयर आर वी गोइंग टू यूज़ द. सबसे पहले तो हम द कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी आर पर्टिकुलर अबाउट दैट थिंग और अ पर्सन, राइट. हम किसके लिए यूज़ करते हैं द, जब हम दूसरी बार या फिर एक चीज़ के बारे में बात कर ली और उसी को हम दूसरी बार रेफ़र कर रहे हैं, देन वी आर गोइंग टू यूज़ द. और भी कुछ सिचुएशंस है जहाँ पर द यूज़ किया जाता है.
जैसे कि रिवर, ओशियन, डेजर्ट, माउंटेन्स, फेमस बिल्डिंग, न्यूज़पेपर, ट्रेन, शिप्स, इन सब के आगे हम ध लगाते हैं, इन सब के नाम के आगे हमें ध लगाना है, राइट। और हम उस ऑब्जेक्ट्स के आगे भी ध लगाते हैं जो एक ही है ना, पूरे वर्ल्ड में या यूनिवर्स में एक ही है, जैसे कि द सन, द मून एंड द स्काई। वी डोंट टॉक अबाउट द यूनिवर्स बिकॉज यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, बट येस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच वी हैव सीन ओनली वन, है ना, पूरी दुनिया में, दैट इज़ द वर्ल्ड, द मून, द स्काई, द अर्थ, है ना, वैसे। और जो सुपरलेटिव डिग्री होता है एडजेक्टिव का, जो मैंने आपको समझाया अभी, सुपरलेटिव डिग्री मतलब जहाँ पर एक चीज़ को बहुत सारी चीज़ों से कंपेयर किया जाता है ना, उसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं एडजेक्टिव की। और उसी एडजेक्टिव जो सुपरलेटिव डिग्री में होता है उसके आगे भी हमें ध लगाना है। साथ में आपको ध्यान रखना है ये 3 वर्ड्स भी, लाइक, फास्ट, लास्ट एंड फर्स्ट, लास्ट, फर्स्ट एंड ओनली। When you have these sentences along with the noun, then you have to write the. और कहाँ पर हम ध यूज़ नहीं करेंगे बच्चों? We are not going to use the with the name of people, city and countries, है ना। इन लोगों के नाम के साथ हमें ध यूज़ नहीं करना है। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ भी ध यूज़ नहीं करते हैं, राइट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ भी ध यूज़ नहीं करेंगे, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी ध यूज़ नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आपको ध का यूसेज अच्छे से समझ में आ गया है। If you want to, you can carry out this exercise. एक्सरसाइज C जो है वो आप आपकी टेक्स्ट बुक में कर सकते हो। ओके, इट्स अ होमवर्क, यू कैन डू इट इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, we will check it tomorrow. Till then, take care and bye.